Uh, Hello, dear students. Welcome to this fifth lecture and second unit of management. Before this start this unit, I would like to recapitulate whatever I have discussed in the previous four lectures. Under unit one, that is overview of business. Under overview of business, we have learned about service, manufacturing, trade, and under industrial sector, we have discussed introduction to engineering industry, textile industry, chemical industry, process industry, and agro-based industries. In globalization, in the same unit, I have discussed about the meaning of globalization, introduction of globalization, and its advantages and disadvantages with respect to India. And finally, we have learned about intellectual property rights, where uh, we know about meaning of intellectual property rights, importance of intellectual property rights, and patent, trademarks, copyrights, design, trade secret, geographical indicators, etc. So now I am going to start unit 2, that is management process. Under this unit, we would discuss about management and its evolutions during the periods. So let us start with lecture outcomes. Okay. So after this session, you will be able to, and you students will be able to, and what ability will be inculcated in you after this session. यानी इस लेक्चर के समाप्ति के बाद आपके अंदर क्या योग्यता आएगी. So after this session, you will be able to explain the meaning of management, explain whether management is art or science, describe the evolutions of management, then describe the pre-scientific management theories, discuss the classical and neoclassical approaches of management, and describe the मैनेजमेंट मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट. तो ये जो है कि डिस्क्राइब करने, एक्सप्लेन करने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी इस लेक्चर के अंत में. सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है? सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. यानी मैनेजमेंट एक कला है जो लोगों को एक साथ लेकर किसी भी वर्क को कंप्लीट करना. ज्यादा दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड goals and objectives using available resources efficiently and effectively. यानी कि जो है मैनेजमेंट ये कहता है दूसरे शब्दों में कि अपने जो इच्छित लक्ष्य है उसको मौजूदा साधनों के प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्ण तरीके से यूज करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही मैनेजमेंट है. अब मैनेजमेंट ठीक है, सब चीज को एक साथ लेकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन व्हाट इंक्लूड्स, क्या आता है मैनेजमेंट के अंदर, अब वो देखते हैं. सो मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, coordinating, controlling an organization or effort for purpose of accomplishing a goal. Now, resourcing encompasses the development and manipulation of human resources, financial resources, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये है कि मैनेजमेंट तो ठीक है, ये सारी चीजें, ये प्लानिंग मतलब व्हाट आई हैव टू डू इन फ्यूचर, ऑर्गेनाइजिंग, सारे जितने भी जो सभी संसाधन है उसको सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उनको स्टाफिंग करना, लीडिंग, कोऑर्डिनेट, समन्वय करना. तो ये सारी चीजों का उसके कंपोनेंट्स हैं जो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. इसका डिस्कशन इसी यूनिट में हम आगे चल के लास्ट में वन बाय वन करेंगे. इसलिए यहाँ मैंने सिर्फ मैनेजमेंट के डिफिनेशन में इतनी पॉइंट को ऐड किया ताकि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है. अब हम आते हैं कि एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट. सो देयर इज ए ग्रेट कंट्रोवर्सी वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट. एक बड़ा कंट्रोवर्सी है कि मैनेजमेंट साइंस है
या आर्ट है। सो इट इज एन आर्ट इन द सेंस ऑफ possessing possessing of मैनेजिंग a skill by a person, यानी कि यह एक व्यक्ति द्वारा प्रबंधन कौशल रखने का के अर्थ में इसको यदि हम देखें तो यह एक कला है। इट इज ए साइंस also because of developing principles or law which are applicable in place where group activities are coordinated, यानी कहता है कि यह एक विज्ञान भी है क्योंकि डेवलपिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, जो कि एक ऐसी जगह या समूह पर लागू होता है जहां गतिविधियों के एक समूह को समन्वित किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है ना। तो इसलिए ये साइंस भी है। सो इन फैक्ट मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड art as it can be clear from the flowing discussion, यानी जब हम तीन चार पॉइंट देखते हैं कि कैसे ये साइंस कैसे ये आर्ट है। सो मेथड्स ऑफ इंक्वायरी आर सिस्टमेटिक और इम्पेरिकल, यानी इसलिए साइंस है कि इसका जो इंक्वायरी का मेथड्स है वो सिस्टमेटिक है। वैसे भी हम साइंस किसको कहते हैं? साइंस वही कहते हैं कि साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो इसका स्टडी हम सिस्टमेटिक करते हैं, इसलिए साइंस है। सेकेंड पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन कैन बी ऑर्डर्ड एंड एनालाइज्ड, जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्डर किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है, इसलिए। थर्ड पॉइंट जो सपोर्ट में है साइंस के वो यह है कि सर्टन प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सली ना एक्सेप्टेड है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। अगेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सो लाइक एन आर्ट मैनेजमेंट इज a personalized and a skillful application of existing knowledge to achieve desired रिजल्ट, यानी ये जो है कि जो पर्सनलाइज्ड और जो मैनेजमेंट का स्किल जो है उसको हम अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए, जो इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए इसका एप्लीकेशन हम करते हैं। तो उस जो नॉलेज का, तो उस सेंस में इसको हम आर्ट कह सकते हैं। इसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है। सेकेंड पॉइंट है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जो लोगों की स्किल है डिफरेंट टाइप को, वो पर्सन टू पर्सन उसका एप्लीकेशन वेरी करता है। यदि कोई व्यक्ति जो ज़्यादा स्किलफुल है और ज़्यादा इफिशियंट है उस स्किल को यूज करने में, तो वो एक पर्सन से, एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर पर वो वेरी कर जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी इसका एप्लीकेशन भी जो है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। कैसे कि यदि कोई ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा और प्रैक्टिस किया है उस स्किल का, तो जो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करा पाएगा। सो दस मैनेजमेंट यूजेज बोथ साइंटिफिक नॉलेज एंड आर्ट इन मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक नॉलेज को भी यूज करता है, आर्ट को भी यूज करता है किसी संस्थान को मैनेज करने के लिए। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो अंडर एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इज वन ऑफ one or other forms that existed in every corner of the world service to down of civilization, यानी सभ्यता वर यदि हम देखें मैनेजमेंट को तो किसी न किसी फॉर्म में वर्ल्ड के हर कोना में व्याप्त है, इवन सबके सिविलाइजेशन के लास्ट पॉइंट तक। सो ऑल्दो द 20th century is marked in history as era of scientific management, yet it does not mean that management was totally absent in years, years, यानी ऐसे जो 20वीं शताब्दी है उसको हम इतिहास में साइंटिफिक मैनेजमेंट के युग के रूप में मानते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है
कि जो मैनेजमेंट था वो पूर्व के वर्षों में टोटली एब्सेंट था, वो था ही नहीं। 1700 to 1800 highlighted the industrial revolution and the factory system, which highlighted the importance of direction as ए मैनेजरियल फंक्शन। यानी आप देखिए कि जो 1700 से 1800 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो व्याप्त हुआ, जो फर्स्ट रेवोल्यूशन आया वो ग्रेट ब्रिटेन में आया 1700 से 1800 के बीच में। उसके बाद जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है वो अमेरिका में आता है, जो 1820 से लेकर 1870 के बीच में। तो उस समय में जो है कि जो फैक्ट्री सिस्टम और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते इसका जो इम्पोर्टेंस वो बढ़ा ना, और मैनेजरियल फंक्शन का। सो सेवरल इकोनॉमिस्ट हैज एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उसके कंसेप्ट को अपने अपने तरीकों से उस पीरियड में एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल एडम स्मिथ जो है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। यानी जो आपको एडम स्मिथ थे और उन्होंने क्या किया कि श्रम विभाजन के कंसेप्ट को ये किया, एक्सप्लेन किया। फिर जैक्यू टॉर्गट उन्होंने एक्सप्लेन किया इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। बैप्टिस्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो सब लोगों ने उस मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने का कारण ये था कि उसी समय बहुत सारे इन्वेंशन हुए, जैसे कि स्टीम इंजन का आविष्कार, सीविंग मशीन का आविष्कार, देन एक्सरे का आविष्कार, लाइट बल्ब, कंबस्टेबल इंजन का आविष्कार। इन सारी चीज़ों की जो इन्वेंशन हुआ उसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड, जो ग्रेट ब्रिटेन एंड अमेरिका में फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड में जो है रेस्पेक्टिवली आया। तो इससे जो है कि बट मैनेजमेंट इज इमर्ज एज सेपरेट डिसिप्लिन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन 1900 शताब्दी के जो सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे उभर के आया, जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ सिस्टम में। एंड and this form of enterprises separated the management of business uh, in search of separated the management of business from their ownership and gave rise of to labor inefficiency and inadequate system of wage payment। लेकिन उस समय जो है कि उद्यमों के इस रूप में व्यवसाय और प्रबंधन को उन्होंने स्वामित्व से अलग किया, कर दिया। और इसका जो अलग होने का रिजल्ट ये हुआ कि जो श्रम अक्षमता और वेतन भुगतान का जो प्रणाली था वो पूरी तरीके से जो है कि इनएफिशिएंट हो गया। यानी वही कहता है कि जो है कि राइज टू लेबर इनएफिशिएंसी एंड इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। यानी इसने जो है कि कहो कि आप जो है इनएफिशिएंसी और इनएडिक्वेट सिस्टम को जन्म दिया, सेपरेशन। बट इन सर्च ऑफ सॉल्यूशन, अब इसके ये जो है इनएडिक्वेसी थी, जो सिस्टम गड़बड़ा गया, इनएफिशिएंसी अदक्षता था, उसके सॉल्यूशन के लिए दिस प्रॉब्लम people began to recognize management as separate field of study, and during 20th century management has become more scientific discipline with a standard principle and practice। और 20वीं शताब्दी आते आते मैनेजमेंट कंप्लीट एक सेपरेट डिसिप्लिन हो गया, जो है जहाँ कि हम उससे रिलेटेड जो है कि स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल का अध्ययन करना शुरू किए। और उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैटेगराइज इन 4 पार्ट्स। अब उसके बाद किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ मैनेजमेंट में, कैसे कैसे इसमें सतत विकास हुआ थ्रू आउट द पीरियड, अब उसका हम देखते हैं। तो आप एक जो ये चार्ट देख रहे हैं इसमें देखिए एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, यानी जो उनकी थॉट का जो विकास हुआ वो किस तरीके से विकसित हुआ। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, उसके बाद आया क्लासिकल मैनेजमेंट पीरियड, देन नियो क्लासिकल मैनेजमेंट पीरियड एंड मॉडर्न थ्योरी अप्रोच आया। तो इनका हम एक एक करके अब नीचे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट बिफोर 1880 यानी 1880 से पहले का जो पीरियड था वो था प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा।
क्या था? प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा. So pre-scientific management era refers to the period immediately preceding the scientific management started by F.W. टेलर एंड हिज एसोसिएट्स. यानी जो फेडरिक विंसलो टेलर थे और उनके जो सहयोगी थे, उनके पीरियड से जस्ट जो पहले का पीरियड था, उसे हम प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट युग कहते हैं, एरा कहते हैं. And prominent among the pioneers who managed the significant contribution to management thoughts were. अब इसमें जो लोग थे, जो प्रथम अन्वेषक जिन्होंने प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनका जो है कि जो नेम है, जो उनका कंट्रीब्यूशन हो, वो कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक ना. अब आते हैं उसके बाद जो है सेकंड फर्स्ट जो है रॉबर्ट ओवेन. ही बिलीव्ड वर्कर परफॉर्मेंस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टोटल एनवायरनमेंट या एट इन विच दे वर्क. यानी रॉबर्ट ओवेन कहते हैं कि वर्कर का जो परफॉर्मेंस है वह उससे प्रभावित था जहां की उन्होंने वर्क किया, वहां के पर्यावरण, वहां के वातावरण से उनका परफॉर्मेंस प्रभावित था. थ्रू आउट हिज लाइफ ओवेन वर्क फॉर बिल्डिंग अप ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. यानी उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ओवेन साहब ने तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन करने की के ऊपर उन्होंने अपना अध्ययन किया और ये बिल्डअप करने की कोशिश की. और ही इंट्रोड्यूस ए न्यू आइडियाज ऑफ ह्यूमन रिलेशन. उन्होंने एक नया मानव जो है कि जुड़ाव का सिद्धांत दिया ह्यूमन रिलेशन का. और उनका कहना था कि शॉर्टर वर्किंग आवर कम होनी चाहिए, हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए वर्कर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का फैसिलिटी होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ कैंटीन होना चाहिए जहाँ लोग कुछ खा पी सके, रेस्ट होना चाहिए हाउस और जहाँ पे वे लोग आराम कर सकें. देन सॉरी, यहाँ रेस्ट हाउसेज होगा, पाउजेज हो गया ना. ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इन हाइजीन. स्वच्छता में उनका जो है कि एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्वच्छता में रखकर, स्वास्थ्य में रखकर, ये उसके ऊपर, ताकि जो है कि उससे वो आगे आ सके. सो रॉबर्ट ओवेन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट. ध्यान रखिएगा, पर्सोनल मैनेजमेंट का फादर जो है रॉबर्ट ओवेन को आ जाता है. यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है. नेक्स्ट अब आते हैं चार्ल्स बैबेज. चार्ल्स Babbage laid considerable emphasis on specialization, work measurement, optimum utilization of machines, cost reduction, wage incentives. ना, यानी जो चार्ल्स वेबेज थे वो जो अपना फाउंडेशन दिए, उनका एम्फेसिस था स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जिस कार्य में ज्यादा दक्ष है, ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, वह उसी कार्य को करे जिस तो बेटर रहेगा. वर्क मेजरमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन. उन्होंने कहा कि किस तरीके से मशीन का जो है उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जो एक्सेस कैपेसिटी बच जाती है उसका भी किस तरीके से यूटिलाइज हो, इस पे उन्होंने जोर दिया. देन कॉस्ट रिडक्शन. इससे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट कम होगा और वेज इंसेंटिव देने से हमारे जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेट रहेंगे तो वर्क करने के लिए. तो ये सारी चीजों पर उनका जोर था. फर्दर ही एम्फेसिस ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स लेड द फाउंडेशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने ही जो है कि फर्स्ट बार साइंस और मैथमेटिक्स का यूज जो है कि मैनेजमेंट के फाउंडेशन रखने के लिए किया था. तो ये चार्ल्स बेबेज का था. देन है जेम्स वाट एंड मैथ्यूस रॉबिन्सन बोल्टन. Contributed to the development of management thoughts by following the certain management techniques in their engineering factory at Soho in Birmingham. Like उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कह रहे थे कि प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्शन क्या करना है उसका पहले हमको प्लानिंग करना होगा. देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स. जो भी कंपोनेंट्स है उनका स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए. देन जो हमारी कंपनी मशीन है उसका रेगुलरली मेंटेनेंस की जरूरत है. प्लान्ड मशीन लेआउट
होना चाहिए जो भी हो। देन प्रोविजन ऑफ वेलफेयर फॉर पर्सोनल, यानी जो वर्कर्स, जो पर्सनल्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी वेलफेयर प्रोविजन, कल्याण संबंधी होनी चाहिए ना। जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड ना, उनके बच्चों के, उनका, उनके डिपेंडेंट का। देन स्कीम फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, और जो भी वो पर्सनल्स हैं, जो भी कार्य करने वाले हैं, उनके विकास के लिए एक स्कीम होना चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च एंड फॉस्टरिंग फॉरकास्टिंग, ठीक ना। फिर मार्केटिंग कंटिन्यूअस रिसर्च होनी चाहिए, क्या डिमांड है उसके, उससे हम फॉरकास्ट करके और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। और एलाबोरेट स्टैटिकल रिकॉर्ड। सो ऑल द एबव theories solve a specific organizational problems, but these are not universally accepted theories that can be applied to all organization। ये ठीक है, सब स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशनल, सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम से जुड़े थे, लेकिन ये यूनिवर्सली इस तरीके से एक्सेप्टेड नहीं था कि वह सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी प्रकार के जो इंडस्ट्रीज है उस पर अप्लीकेबल हो। देन उसके बाद तो इसके ऊपर आया क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, जो 1880 से लेकर 1930 का एरा था। प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, जेम्स वाट जूनियर, मैथ्यू रॉबिन्सन बोल्टन, रॉबर्ट वोवेन, हेनरी रॉबिन्सन टॉवेन, रॉन्ट्री वर नो डाउट pioneers ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ऐसा नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो प्री साइंटिफिक में अपना योगदान दिया, बट द इम्पैक्ट ऑफ दियर कंट्रीब्यूशन ऑन द इंडस्ट्री एज ए होल वाज इनसिग्निफिकेंट। लेकिन जो उनका इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट था, जो वो एकदम इनसिग्निफिकेंट था, नहीं के बराबर था। द क्लासिकल पीरियड स्टार्टेड विद रियल बिगिनिंग ऑफ द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। और यही रीजन था कि क्लासिकल पीरियड स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनका जो सॉल्यूशन था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था, और सभी जितनी भी इंडस्ट्री थी उस पर समान रूप से अप्लीकेबल नहीं था, जिसके वजह से प्रॉब्लम अगेन एग्जिस्ट करता था। इसलिए क्लासिकल पीरियड स्टार्ट हुआ। और क्लासिकल मैनेजमेंट एरा इंक्लूड द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी एंड वेबर्स ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट थ्योरी। सो लेट अस स्टार्ट द फीचर। क्लासिकल पीरियड में मैनेजमेंट का क्या फीचर था? तो इट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केल इंटरप्राइज, यानी यह जो था वो क्लोजली जो है किससे था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इसका कंसर्न था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते जो हमारी औद्योगिक क्रांति आई थी, और इससे जो उद्योग हमारे जिस हाईली पेस, उच्च गति से आगे की तरफ बढ़ रहे थे ब्रिटेन और अमेरिका में, उससे काफी रिलेटेड ये थ्योरीज आई। Next, the classical organization and management theory is based on contribution from a number of sources. They are scientific management, administrative management theory, bureaucratic management model, and microeconomics and public administration. Next, ये समझ गया ना कि थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन फॉर्म, sorry, contribution from a number of sources, डिफरेंट सोर्सेज से जो कंट्रीब्यूशन था, और वो चाहे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, चाहे फाइल के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो, या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल हो, या माइक्रो इकोनॉमिक, इस सब से जो कंट्रीब्यूशन था, ताकि किस तरीके से उसको और ज्यादा उसके पेस को तेज किया जा सके, उसके गति को तेज किया जा सके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट थॉट फोकस्ड ऑन जॉब कंटेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, स्टैंडर्डाइजेशन, simplification, and a specialization and scientific approach towards organization। ये जो क्लासिकल पीरियड था, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस था वो जॉब कंटेंट पे, जॉब पर था।
उसके बाद श्रम विभाजन जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि वे व्यक्ति यानी वैसे लेबर जो कंप्यूटर संबंधित वर्क में इफिशिएंट है, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क किया जाए, वैसे व्यक्ति जो मैनुअल वर्क में इफिशिएंट है, उसको मैनुअल वर्क दिया जाए। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो है उनको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको वर्क असाइन करना। स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका फर्स्ट एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा कि इस लेवल का होगा, ये क्वालिटी उसमें नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, और जो भी होगा कि ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करने का तरफ। सो उसके बाद जो आया नियो क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, 1930 से लेकर 1950 तक इस एरा रहता है। और इसमें जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो क्लासिकल पीरियड में जो कुछ डेवलप किया गया था, उसके ऊपर नियो क्लासिकल में जाकर रिफॉर्म किया गया। सो नियो क्लासिकल थ्योरी इज बिल्ट ऑन द बेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ओके, it modified, improved and extended the classical theory, या उसको मॉडिफाइड किया, उसमें इंप्रूवमेंट लाया, उस थ्योरी को एक्सटेंड किया। तो ये यही था क्लासिकल थ्योरी का एक्सटेंशन, कर सकते हैं कि नियो क्लासिकल थ्योरी था। सो क्लासिकल थ्योरी कंसंट्रेटेड ऑन जॉब कंटेंट मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, वेयर एज नियो क्लासिकल गिव ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन, यानी व्यक्तिगत और जो है एक ग्रुप रिलेशनशिप इन द वर्क प्लेस, इस पे ज्यादा उन्होंने नियो क्लासिकल में जोड़ दिया गया। व्यक्तिगत और जो है कि समूह में जो एक वर्क प्लेस पे जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर उसका बल था। द नियो क्लासिकल थ्योरी पॉइंटेड आउट रोल ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने जो साइकोलॉजी का रोल और सोशोलॉजी का रोल को जो इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर पर जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे क्या है, उस पर भी इसमें बल दिया गया था। एक्चुअली हमें साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है इंडिविजुअल का, जो इंडस्ट्रियल लेबर है उनका, उसको समझना भी बहुत जरूरी है, तभी जाके वर्क सही से हो पाएगा। सो दिस नियो क्लासिकल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स एंड बिहेवियरल मैनेजमेंट स्कूल। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स के बारे में। सो जॉर्ज एल्टन मायो carried out investigation in human problems at Hawthorne plant of Western Electrical Company at Chicago। यानी जो जॉर्ज एल्टन मायो हैं, इन्होंने जो ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो हॉथर्न प्लांट में उस पे स्टडी किया, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के संदर्भ में वो जानने की कोशिश की। एंड दे कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट नोन एज, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, एंड इन्वेस्टिगेटेड इनफॉर्मल ग्रुपिंग, informal relationships and patterns of communication, पैटर्न ऑफ इनफॉर्मल लीडरशिप, इन सारी चीजों को उन्होंने, ये फॉर्मल नहीं था, ये सारी चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इस पे अध्ययन किया कि भाई आखिर किस तरीके के रिलेशनशिप, किस तरह के जो है कि कम्युनिकेशन है, और उसका जो है कि लीडरशिप का जो इनफॉर्मल है उसका पैटर्न क्या है, इन सारी चीजों पर उन्होंने अध्ययन करके एक फाइंड करने की कोशिश किया कि क्या सही इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ कि नहीं, क्योंकि इसका भी प्रभाव प्रोडक्शन पे पड़ता है। नेक्स्ट, एल्टन मायो इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, यानी इनको ही जो है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट या ह्यूमन रिलेशंस स्कूल्स का पिता कहता है, विच लेटर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नाम से जाना गया बाद में। अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वर्क ग्रुप, नीड फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड वर्कर्स। उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस वर्क ग्रुप पर दिया, और कहा कि जरूरत यह है कि जो सुपरवाइजर एंड वर्कर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, ताकि जो है कि वर्क
और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो उनका गति को तेज करना और जो डिजायर्ड लक्ष्य था उसको प्राप्त किया जा सके। सो मेन कंट्रीब्यूटर्स इन बिहेवियर अप्रोच आर मास्लो थे, जिनकी मोटिवेशन थ्योरी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हेजरबर्ग भी थे, इनका भी मोटिवेशन थ्योरी है। एंड जॉर्ज है। तो ये सारे मेन कंट्रीब्यूटर हैं इसके बिहेवियरल अप्रोच के। उसके बाद आते हैं अब मॉडर्न मैनेजमेंट एराज और थ्योरीज, जो कि 1950 के बाद शुरू होता है। सो मॉडर्न मैनेजमेंट इंक्लूड सोशल सिस्टम स्कूल, डिसीजन थ्योरी स्कूल, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, सिस्टम मैनेजमेंट अप्रोच एंड कंटीजेंसी मैनेजमेंट अप्रोच एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये सारे अप्रोच जो है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में हैं। अब इन मैनेजमेंट अप्रोच ने क्या क्या अप्रोच इसमें क्वांटिटेटिव सिस्टम देन कंटीजेंसी ऑपरेशनल में अप्लाई किया है, उसको अब हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब क्वांटिटेटिव अप्रोच के जो मेन कंट्रीब्यूटर थे वो टेलर थे, गिलब्रेथ थे, देन गैंट थे, न्यूमैन एंड जोल्डेन थे, जियोल्डीन। अब जो है कि इन लोगों का कहना है, इनका है कि मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट मस्ट मेक यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द पर्पस। यानी वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स के सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इन्होंने एक्चुअली जो अपना फोकस था वो कंसर्न विद प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्होंने मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स को अप्लाई किया। और मैनेजिंग प्रॉब्लम्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मैथमेटिकल मॉडल्स। इन्होंने जो जितने भी मैनेजमेंट के मैनेज करने वाले टूल्स हैं उनको मैथमेटिकल मॉडल के रूप में डिस्क्राइब किया। यही देखिएगा आगे जो है कि इसमें मैनेजमेंट में मैथमेटिक्स आ जाता है, जो लोग आगे पढ़ते हैं। देन सिस्टम अप्रोच। सो द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ सिस्टम अप्रोच वाज वर that is the Johnson, Churchman, Kenneth, Baldings and Rosen Jing। सो द रिलेटेड इनका जो था उनका क्या था, द रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज डिफाइंड। इनका जो डिफिनेशन है, कहते हैं कि एन एस्टेब्लिश्ड अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स which lead to accomplishment of particular objectives as per plan। यानी ये कहते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच में इनका कहना है कि जो भी कंपोनेंट्स अरेंज किए गए हैं, जो हमारा पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है या जो किया गया है, क्या वो एज पर प्लान है या नहीं है। तो सिस्टम अप्रोच का यही फोकस था कि जो कुछ भी हो ऑर्गेनाइज तरीके से हो और वो जो हमारा प्लान पहले फिक्स किया गया था उसके अकॉर्डिंग उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। ये सिस्टम अप्रोच का था। देन आते हैं कंटीजेंसी अप्रोच। सो कंटीजेंसी अप्रोच का जो मेन कंट्रीब्यूटर थे वो जॉन वुडवार्ड्स, फेडलर, लॉस एंड लॉरेंस थे। उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज सिचुएशनल एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स इन द सिचुएशन। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में इसके पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन्होंने कंटीजेंसी अप्रोच में मैनेजमेंट को सिचुएशनल बताया और सिचुएशनल बताते हुए इन्होंने कहा कि यह उन वेरिएबल पे डिपेंड करता है जो कि वहाँ के सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं। द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ओवरऑल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कंटीजेंसी मैनेजमेंट। इन्होंने इनका जो तीन मेजर पार्ट जिस पर फोकस था वो फर्स्ट इन्वायरमेंट। यानी एक चीज है कि इन्वायरमेंट एक वेरिएबल्स के तौर पे ले सकते हैं कि वहाँ का किस तरह का वातावरण था, उस वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ा होगा। सेकेंड है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स कौन से यूज की गई थी उसको मैनेज करने के लिए। एंड जो है कि थर्ड पॉइंट दैट इज द कंटीजेंट रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक।
सो इनके बीच प्रासंगिक रिलेशनशिप है कि नहीं? यदि ये तीनों चीज सही है, देन आवर आउटपुट और प्रोडक्शन विल बी बेटर एंड इन द राइट डायरेक्शन। अदरवाइज इट इज opposite to our organizational objectives, uh, then it will be give a negative impact on that particular uh, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन। सो ये था कंटीजेंसी अप्रोच। अब उसके बाद जो है ऑपरेशनल अप्रोच। सो मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑपरेशनल अप्रोच के थे कुंट थे, डोनेल और रिच थे। सो इट एम्फेसिस ऑन टिपिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट ना, वो विशिष्ट ऑपरेशन जो इनका है ना, टिपिकल ऑपरेशन है, उसके ऊपर इनका जो है फोकस था इस अप्रोच के लोगों को। अब वो जो टिपिकल कहते हैं विशिष्ट जो कार्य थे उनके ऊपर उनका फोकस था, जैसे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, लाइक सो इट ड्रा एंड ओवर एंड सॉरी draws on all over managerial approach. It has practical application of management। यह जो है कि मैनेजमेंट का इनका जो है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बल था, और जो कि हम जो करते हैं वहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि वो व्यक्ति जो ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकली साउंड हैं, वो उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। हाउएवर इट इज बेस्ड मोस्टली ऑन द मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच, दैट इज यानी प्रोसेस अप्रोच जो है, यानी प्रक्रिया का जो अप्रोच था उन पे इनका फोकस था। तो दैट इज द फंक्शनल अप्रोच ना, जो फंक्शनल अप्रोच के सिमिलर है। तो इस प्रकार आज इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हुआ। और ऐसा आपको यदि ये सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप करके अपना जो है कि सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा कि आप कितना सोल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद कुछ ग्रोसरी टर्म्स हैं, यदि आपको ऊपर न समझ में आए तो आप इसको आप क्या कीजिएगा कि यहाँ आप उस टर्म को देख सकते हैं, और आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जैसे ही यूनिट खत्म होता है तो उसका जो भी डाउट्स है उसको आप नोट करके रखिए कि यूनिट के लास्ट में एक मैं डाउट भी लूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या सीखे? इस लेक्चर में हम लोग सीखे कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट, ये सीखे। उसके बाद सीखे एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, देन प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज कौन कौन थी, किन लोगों ने उस समय कंट्रीब्यूशन दिया था प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज में। उसके बाद क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट को देखे। एंड फाइनली हम लोग डिस्कस किसका किए, मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ की हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कंटीजेंसी अप्रोच एंड ऑपरेशनल अप्रोच को। सो इसी के साथ जो है कि ये लेक्चर समाप्त होता है, और तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन।